Hey everyone, good afternoon. How's everybody doing today? Welcome to our first lecture on inequalities. I know we haven't done this in a very long time. Hi there. Hi Shruti. Hello Soumya. Hi Ritik. Hello Ruchika. Good afternoon, guys. My name is Amit Surana. I am here with the first lecture on inequalities. So far under algebra, we have seen surds indices, linear equations, quadratic equations, and polynomials. This is what we've completed so far. Hello Vineet. Hi Soumya. Good afternoon. Good afternoon. Alright, so this is what we've already covered so far under algebra. Today what we are going to start with are inequalities. Under inequalities, today we are going to look at the introduction, properties of inequalities, how to perform different operations on inequalities, what are linear inequalities, absolute value inequalities or modulus inequalities, what are quadratic inequalities, polynomial inequalities. Okay, so this is today's agenda. I know it looks a little packed. That's probably because it is a little packed. Inequalities has been important. Questions from inequalities don't only come from algebra, but you will also come across questions from inequalities being asked in number systems, right? You will come across inequalities being used in geometry and mensuration. You will come across inequalities being used in arithmetic also sometimes, right, as well as in modern math. So on the whole, what we are seeing is a concept, right? Inequalities is a concept. Direct questions may come, may not come, nobody could be sure about it, but then its uses are spread across entire quantitative aptitude. Okay. Hi Ritik. डेफिनेटली है ऋतिक. एल्जिब्रा अपना 2 दिन में खत्म हो जाएगा. टुडे वी विल कंप्लीट ऑफ इनइक्वालिटीज. टुमारो वी विल डू functions and logarithms, right? So 3 दिन, today, tomorrow, day after tomorrow. With that our entire algebra will get over and then we will start with geometry and mensuration. Okay, chalo. My name is Amit Surana. I am an educator here at Unacademy with over 7 years of experience. I've trained over 2.5 lakh students so far. चलेंगे, शुरू करेंगे. इनइक्वालिटीज. हाय प्रिंस. हेलो. हाय वेदांत. वेलकम वेलकम गाइस. चलो, ऑलराइट. हाय समर्थ. गुड आफ्टरनून. अभी उठे हो क्या? गुड मॉर्निंग. मैं 1 नंबर. आप कैसे हो? चलिए शुरू करते विथ इनइक्वालिटीज. ओके, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इनइक्वालिटीज आर एनी डिफरेंट फ्रॉम इक्वेशंस, है ना. इक्वेशंस में अपन क्या करते हैं? If I were to say that x plus x minus 3 is equal to something, right? X minus 3 is equal to 8, let's say. And if I say x minus 3 is equal to 8, then here we can directly get the value of x, exact value of x, right? Precise value of x being what? 11, है ना. So this part is called an equation, correct? ये अपना क्या हो गया? Linear equation हो गया. Now in inequalities क्या होता है? Instead of giving you the exact value, inequalities में क्या मिलता है? Value नहीं मिलता है, range मिलता है. Possible values of the variable, है ना. कितने हो सकते हैं, क्या हो सकता है. So the same thing अगर मैं बोलूं कि x minus 3 is greater than equal to 8, राइट. अगर मैं बोलूं कि x minus 3 is greater than equal to 8, तो हमें क्या मिलेगा कि x is greater than equal to 11. इसका क्या मतलब हो गया कि x का वैल्यू 11 तो हो ही सकता है. जस्ट लाइक हियर x का वैल्यू 11 तो हो ही सकता है, बट उसके साथ साथ x क्या हो सकता है? 11.1 हो सकता है, 11.001 हो सकता है, 12 हो सकता है, 4 मिलियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑल द वे टिल इंफिनिटी, है ना. समझ रहे हो? तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? रेंज मिलता है कि x का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है. तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे कि x का वैल्यू जो है वो 11 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाता है. अंडरस्टूड?
यस तो इक्वेशन और इनइक्वालिटीज का यही डिफरेंस है, इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज का यही डिफरेंस है कि इक्वेशन आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताता है वेरिएबल का, इनइक्वालिटीज आपको रेंज देता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट गेट आस्क्ड इन इनइक्वालिटीज, लीनियर, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज, है ना। तो इसको रख के देयर कुड बी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सॉल्विंग द इनइक्वालिटी, देयर कुड बी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सॉल्विंग एन इनइक्वालिटी दैट विल हेल्प यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल, राइट। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको इनइक्वालिटीज में आते हैं, है ना। तो इसके अंडर दिस इटसेल्फ वी हैव अनदर थिंग कॉल्ड लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, है ना। इसी के नीचे जो है आपका लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज भी है, यस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज भी है, बट वो आज अपन नहीं देखेंगे। टुडे वी विल नॉट लुक एट लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, क्योंकि वो लॉगरिथम्स के बाद देखेंगे, है ना। एक बार लॉग का कॉन्सेप्ट हो जाए उसके बाद लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज देखेंगे तो हमें समझ में आएगा क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। कूल गाइस, हेलो थैंक्स। चलिए शुरू करते हैं विद इनइक्वालिटीज, राइट। सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी, है ना। टर्मिनोलॉजी को कैसे समझे, सबसे पहले ब्रैकेट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी, राइट। क्योंकि यहां पे हमें वेरिएबल का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता, बिकॉज वी डोंट गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। व्हाट डू वी यूज रेंज, है ना। तो रेंज को बताने के लिए वी कांट ऑलवेज यूज वर्ड्स। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को बोलना है कि x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू विल लाई बिटवीन लेट्स से 11 एंड 4, है ना। मेरे को ये बोलना है कि x का वैल्यू जो है 4 और 11 के बीच में रहेगा, मतलब क्या 4 से ज्यादा 11 से कम रहता, बराबर। x का वैल्यू 4 से ज्यादा रहेगा बट 11 से कम रहेगा। अब ये हर वक्त अपन नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि अपन डायरेक्टली क्या लिखते हैं कि x का वैल्यू क्या है 4 लेट्स से, या x का वैल्यू क्या है 7 लेट्स से, डायरेक्टली बोल सकते हैं। सो जस्ट लाइक दैट, टू शो द रेंज विदाउट यूजिंग दीज सिंबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू, वी यूज ब्रैकेट्स, यस। तो यहां पे अपन क्या बोलेंगे, टू शो दैट x का जो वैल्यू है, टू शो x का वैल्यू इज बिटवीन 4 एंड 11, वी विल यूज दीज ब्रैकेट्स, यस। जो पैरेंथेसिस है, योर रेगुलर ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस, राइट, दीज स्टैंड फॉर व्हाट, एक्सक्लूडिंग द एक्सट्रीम्स, है ना, एक्सक्लूडिंग द एक्सट्रीम्स। मतलब क्या, यहां पे देखो x का वैल्यू क्या है 4 और 11 के बीच में है, बट x आपका 4 नहीं हो सकता, x आपका 11 नहीं हो सकता, समझ रहे हो। जब x आपका 4 या 11 एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं हो सकती, तो अपन इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि x जो है 4,11 बट बोथ एक्सट्रीम्स नॉट इंक्लूडेड, समझ गए। यहां पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, यहां पे आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि सर इतना क्यों मगजमारी करने का, व्हाई डू वी हैव टू डू सच हार्डशिप्स, व्हाई कांट वी डायरेक्टली से कि x का वैल्यू जो है वो 5 और 11 के बीच में रहेगा, 5 और 10 के बीच में रहेगा, ये भी तो हो सकता है ना। यस, x का जो वैल्यू है वो 5 और 10 के बीच में हो सकता है, इतना मगजमारी क्यों करना है। स्क्वायर ब्रैकेट्स मीन व्हाट, इंक्लूडिंग द एक्सट्रीम्स, यस। क्या ये दोनों सेम है गाइस, क्या ये दोनों सेम है कि x का वैल्यू 4 और 11 के बीच में, 4 और 11 नॉट इंक्लूडेड, x का वैल्यू 5 और 10 के बीच में, 5 और 10 इंक्लूडेड, सेम ही है ना, नहीं है सेम, दे नॉट द सेम। क्यों बताते, चलो लेट्स क्विकली लुक एट डिफरेंट लॉजिक्स फर्स्ट, ठीक है। तो ब्रैकेट्स के बारे में एक एक करके आएंगे, लेट्स गो फॉर डिफरेंट सिंबल्स। फर्स्ट, लेस देन और ग्रेटर देन, है ना, लेस देन और ग्रेटर देन। सो हियर इफ आई से दैट x इज लेस देन 3, अगर मैं बोलूं कि x जो है वो लेस देन 3 है, तो x का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, x का वैल्यू कैन गो 3 से नीचे, लेस देन मतलब टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर लाइन, समझ रहे हो। लेस देन का मतलब क्या, लेफ्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर ऑन द नंबर लाइन, तो यहां से लेफ्ट, मतलब ये सारी वैल्यूज हो सकती है x की, है ना, नेगेटिव इंफिनिटी तक। बट क्या इसमें 3 हो सकता है, क्या यहां पे कैन x बी इक्वल टू 3, हाय आयुष अपने सारे जो बेसिक क्लासेस है आर इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर अ मैथ स्टूडेंट और नॉट, है ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ, एकदम स्क्रैच से लेके जा रहा हूं मैं इनइक्वालिटीज में, ये जो है वो एकदम बेसिक्स है, एकदम बेसिक्स, ओके।
तो यहां पे x का वैल्यू 3 नहीं हो सकता, मतलब क्या, 3 को एक्सक्लूड करके, 3 को एक्सक्लूड करके, मतलब x का वैल्यू क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, x का वैल्यू 5 हो सकता है, सो ऑन। कहां तक जाएगा ये, x का वैल्यू नेगेटिव इंफिनिटी। यस, बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि इंफिनिटी जो टर्म है, द टर्म इंफिनिटी, यस, इज नॉट डिफाइंड वैल्यू, इसका कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है ना। infinity can be equal to 100 if we want, infinity can be equal to 1000 if we want, right? जहां तक नंबर लाइन जाएगा वहां तक, मतलब क्या, मैं इंफिनिटी का वैल्यू कुछ भी ले सकता हूं, एनीथिंग, ये इंफिनिटी हो सकता है, राइट? यहां पे मैं थक गया जीरोस लिखते लिखते, बट इंफिनिटी का वैल्यू नहीं, सो इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड। इसीलिए अपन क्या, सॉरी 4 5 नहीं, माय बैड प्रिंस, 2 1 एंड सो ऑन, ओके, सॉरी। तो यहां पे अपन क्या बोलेंगे, यूजिंग द ब्रैकेट्स, राइट, यूजिंग द ब्रैकेट्स वी विल से व्हाट, कि x का जो वैल्यू है, x will belong till what, 3 is the maximum value, इससे beyond नहीं जा सकता, minus infinity is the minimum value, इससे beyond नहीं जा सकता, क्योंकि 3 not included है, अपन रेगुलर ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे, और क्योंकि इंफिनिटी या नेगेटिव इंफिनिटी का वैल्यू नॉट डिफाइंड है, बिकॉज इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड, अपन उस पे भी क्या लगाएंगे, रेगुलर ब्रैकेट ही लगाएंगे। We will use only parenthesis, yes, excluding the extremes. Understood guys? ये आया समझ में कि x का वैल्यू नेगेटिव इंफिनिटी टू 3, दैट मीन्स व्हाट, 3 तक जाएगा बट 3 वैल्यू नहीं हो सकता, है ना। अब आप ये डिबेट कर सकते हो, नाउ यू कैन डिबेट, सर अगर 3 नहीं हो सकता तो 4 तो हो सकता है, तो can't we write minus infinity to 4? Aren't these the same values? ये दोनों सेम है, नहीं है ये सर, सॉरी 2 फ्लो में चला गया, 2, तो 2 तो है ही है ना, 2 इज एन इंक्लूडेड वैल्यू, तो 2 क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पे कहीं पर भी नहीं बोला कि x इंटीजर होगा, है ना, x इंटीजर होगा, वो कहीं पर भी नहीं बोला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो क्या x का वैल्यू यहां पे, x का वैल्यू आई कैन टेक इट एज 2.9, कौन है पूछने वाला, राइट? x का वैल्यू आई कैन से 1.33, इंटीजर है करके कोई नहीं बोल रहा, तो इफ आई टेक 2.9, x का वैल्यू 2.9, तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है ना, इसीलिए वी यूज द रेगुलर ब्रैकेट्स। क्लियर है यहां तक ब्रैकेट्स का सीन? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। सो व्हेन आई से x इज लेस देन 3, जब मैं बोलूं कि x का वैल्यू जो है वो लेस देन 3 है, तो अपन कैसे करेंगे, वी विल राइट इट एज x belongs to minus infinity to 3, both not included. Okay, chalo, now we'll move on to the next part, that is less than equal to, right? Less than equal to, this also means what, less than and equal to का मतलब क्या है, same, left off but including, समझ रहे हो, left off and including मतलब क्या, कि 3 से लेफ्ट के वैल्यूज तो सारे है ही है, 3 के लेफ्ट के वैल्यूज तो सारे है ही हैं, बट 3 विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। करेक्ट सौम्या, सुपर। तो यहां पे क्या हो रहा है, इफ आई से x इज लेस देन और इक्वल टू 3, अपन क्या क्या वैल्यूज लिख सकते हैं x का, x 3 हो सकता है, x 2.9 हो सकता है, x 2 हो सकता है, x 4/3 हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये सारे वैल्यूज x के पॉसिबल है, x -100 हो सकता है, या सो व्हाट हैपेंस हियर, वी विल से दैट x can go all the way till negative infinity, but negative infinity cannot be included, but 3 can be. समझ रहे हो everyone? So what does the square bracket mean? Square bracket क्या है, including. Yes, square bracket including, normal your parenthesis is what, excluding. ठीक है, चलिए for the next operation, next symbol, which will be what, greater than. What do you mean by greater than guys? Greater than का मतलब क्या है, right of. Yes, greater than मतलब right of. So if I say x is greater than 3,
इफ आई से x इज ग्रेटर देन 3 तो क्या हो जाएगा यहां पे, what are the values that we will include, या x is greater than -3, चलो x is greater than -3, what values will be included, -3 से लेके everything to the right side of it, -3 से लेके everything to the right side of it, but -3 included होगा क्या, नहीं. So how will we write this in terms of our symbol, x will belong to what, 3 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक, बट बोथ नॉट इंक्लूडेड. क्लियर. एंड फॉर द लास्ट वन जहां पे अपने को क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब क्या, राइट ऑफ एंड इंक्लूडिंग. यस, हाँ -3, हाँ सॉरी -3 से लेके इंफिनिटी, सॉरी, हाँ, या अंडरस्टूड. नाउ फॉर द लास्ट वन जहां पे अपन बोल रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, यहां पे क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, व्हाट विल गो ऑन हियर, यहां पे हमें क्या क्या वैल्यूज मिलेंगे x के, x -3 हो सकता है एंड एनी वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन -3. कैन -2.5 बी इंक्लूडेड गाइस, यहां पे -2.5 इंक्लूड हो सकता है. Is this allowed or not guys? Yes or no? जल्दी बोलो. Yes. क्यों? राइट साइड है ना, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं -3 से लेके एवरीथिंग टू द राइट हैंड साइड ऑफ इट. मतलब क्या, -3 तो इंक्लूडेड है ही है, उससे राइट में जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो, मतलब इट कैन बी, x कैन बी इक्वल टू -2.5 ऑल्सो. क्यों? क्योंकि -2.5 इज ग्रेटर देन -2. तो यहां पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -3 से लेके इंफिनिटी तक, इंफिनिटी नॉट इंक्लूडेड, -3 इंक्लूडेड. क्लियर है एवरीवन? सबका सॉर्टेड है ये? यस. नाउ if I combine two of the statements, अगर मैं दो statements को combine कर दूं, let's say if I tell you कि x जो है, x has to be greater than 3 but x has to be less than -3, है ना, x जो है greater than 3 होना चाहिए या फिर x जो है -3 से छोटा होना चाहिए. तो उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ विल वी रिप्रेजेंट दैट, व्हाट विल हैपन हियर, x ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक एवरीथिंग, एंड -3 से लेके नेगेटिव इंफिनिटी तक एवरीथिंग. यस. सो हाउ विल वी राइट दिस, इसको अपन कैसे लिखेंगे, हाउ विल वी राइट दिस पर्टिकुलर पार्ट, वी विल राइट इन टर्म्स ऑफ आवर ब्रैकेट्स. कैसे लिखेंगे कि x का जो वैल्यू है वो नेगेटिव इंफिनिटी से लेके -3 तक हो सकता है, बोथ नॉट इंक्लूडेड, 3 से लेके इंफिनिटी तक हो सकता है, बोथ नॉट इंक्लूडेड. बीच में अपन क्या लगाएंगे, यूनियन. यस, बीच में अपन क्या लगाएंगे, यूनियन. यूनियन का क्या मतलब है कि या फिर इधर दिस और दिस, है ना, और यूनियन मतलब और, मतलब यहां के कोई भी वैल्यूज हो सकते हैं, यहां के कोई भी वैल्यूज भी हो सकते हैं. क्लियर एवरीवन? यस ऋतिक, यूनियन मतलब और. बहुत बढ़िया, सुपर. ठीक है. व्हाट इफ नाउ आई टेल यू के x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू हैज टू बी लेस देन -3 एंड लेस देन 3 ग्रेटर देन -3. अब बताओ, x का वैल्यू लेस देन 3 ग्रेटर देन -3. अब बताओ जल्दी से, how will we write this, x greater than 3, sorry, x less than 3, x greater than -3. वेरी गुड, सुपर. तब क्या बोल रहे हैं अपन, here we are seeing कि x का जो वैल्यू है वो -3 से राइट साइड में होना चाहिए. यस. और x का जो वैल्यू है वो 3 से लेफ्ट साइड में होना चाहिए, है ना, ऐसे. तो हम कौन सा वाला पार्ट लेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करता है, दोनों को सेटिस्फाई करता है, विच मीन्स व्हाट, दिस पार्ट,
है ना, ये वाला पार्ट हो जाएगा। मतलब व्हाट इज दैट, दैट बेसिकली मीन्स द इंटरसेक्शन ऑफ इट, इंटरसेक्शन है ना, कि x का जो वैल्यू है वो क्या, माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक, इंटरसेक्शन ऑफ -3 से लेके इन्फिनिटी तक, है ना। तो यहां पे क्या होता है, ऐसे इंटरसेक्शन लिखने पे कंफ्यूजन हो जाता है। व्हेन वी पुट इंटरसेक्शन इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग। सो हाउ डू वी रादर राइट इट, जो कॉमन पार्ट है जो इंटरसेक्शन में रहेगा, दैट इज -3 से लेके 3 तक, दोनों नॉट इंक्लूडेड। सॉर्टेड है गाइस। यूनियन इंटरसेक्शन समझ में आ गया इधर सबको, यूनियन एंड इंटरसेक्शन सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट यहां पे गाइस? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आस्क इज, ये कब यूज करेंगे भाई, व्हेन विल वी यूज दिस, ये कब यूज करेंगे, है ना। तो दिस विल बी यूज्ड व्हेन वी हैव टू गो फॉर this particular thing will be used when we have to go for, let's say कि अपन बात कर रहे हैं x का, ठीक है, we are talking about x, ओके अपन बात कर रहे हैं x का, एंड वी आर सेइंग दैट x जो है राइट, x कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन लेट्स से -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, है ना। x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मीन्स व्हाट, एनी रियल नंबर, है ना, एनी रियल नंबर, राइट। तो अगर मैं आपको ये बोलना चाहूं कि x का वैल्यू -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी हो सकता है, बट x जो है कभी 0 नहीं हो सकता, राइट। x का वैल्यू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो सकता है, बट x जो है रियल नहीं हो सकता, मतलब 0 नहीं हो सकता। मतलब अपन क्या बोल रहे हैं कि x कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0. So how will we represent that in terms of, brackets? क्या बोलेंगे अपन, नेगेटिव इंफिनिटी तक जा सकता है, पॉजिटिव इंफिनिटी तक जा सकता है, बट 0 नहीं हो सकता, समझ रहे हो, 0 नॉट इंक्लूडेड, 0 से लेफ्ट सारे वैल्यू, 0 से राइट सारे वैल्यू। सो हाउ विल वी राइट इट, विल राइट दैट x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, and we have to exclude, so excluding any specific values, अगर हमें कुछ specific values के बारे में बात करने तब हम उसे फ्लावर ब्रैकेट्स में डालते हैं, गॉट इट। कर्ली ब्रैकेट्स में कब डालते हैं, जब हमें उन्हें एक्सक्लूड करना होता है, राइट, या उन्हें अलग से बात करनी होती है। यस, इफ आई से दैट x के जो वैल्यूज है, x कैन ओनली बी इक्वल टू 1, 2 and 4। यस, अगर मेरे को बोलना है कि x का जो वैल्यू है 1, 2 और 4 ही हो सकता है, कोई और वैल्यू नहीं, ठीक है, 1, 2 और 3, x का वैल्यू 1, 2 और 3 है। सो टेल मी इफ दिस इज राइट, क्या ये सही है, इज दिस करेक्ट, 1 से लेके 3 तक दोनों इंक्लूडेड, इज दिस करेक्ट, यस और नो गाइस? हाँ, तो यहां पे क्या हो जाता है कि जब मैं बोलूं कि x का वैल्यू 1 और 3 के बीच में सारे वैल्यूज, तो हमें क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 1.5 भी आएगा, बट कैन x भी इक्वल टू 1.5, नहीं। तो जब हमें स्पेसिफिक वैल्यूज की बात करनी है, जब हमें उस सेट को डिफाइन करना है, तब अपन कैसे करेंगे कि x का जो वैल्यू है वो क्या है, 1 और 1, 2 और 3 है, समझ गए? Yes, that is when we use the flower brackets. Clear? Specific values. Okay guys, सब कुछ clear है ना यहां तक? All 3 brackets are done. What is this? Specific. So including, excluding, specific.
करेक्ट विनीत, एग्जैक्टली। इस साइड में ग्रीन वाला, ये वाला पार्ट नहीं आया। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि x का वैल्यू 3 से छोटा होना चाहिए। x का जो वैल्यू है वो 3 से छोटा होना चाहिए। मतलब क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, 3 को छोड़ के सारे जो भी लेफ्ट में आते हैं वो वाले वैल्यूज, है ना, यहां तक, इन नेगेटिव इन्फिनिटी तक। और अभी क्या बोल रहे हैं कि x का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन -3, मतलब -3 से जो भी राइट में वैल्यूज आ रहे हैं वो। बट क्योंकि यहां पे कॉमन वैल्यूज, क्योंकि यहां पे हमें कॉमन वैल्यूज देखना है, सो व्हाट विल वी कंसीडर, वी विल कंसीडर उनका इंटरसेक्शन। ये नेगेटिव इन्फिनिटी टू 3 इंटरसेक्शन -3 टू इन्फिनिटी। तो इसके बीच के जो कॉमन वैल्यूज है वो क्या है, ये -3 से लेके 3 तक। ठीक है, अंडरस्टूड गाइज एवरीवन। अच्छा, अभी टू गो फॉर एग्जांपल्स, आगे उस कॉन्सेप्ट में आगे बात करने के लिए फटाफट जो अभी लिंक भेजा है, अभी जो लिंक चैट में भेजा है, अभी एक लिंक आएगा चैट में, क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर लिंक, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाओ, गो टू डिस्क्रिप्शन, you will see a bunch of links, not the link that we have spoken about। क्या है यार, ये इतने सारे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, none of them। ओके, अभी जो चैट में लिंक आया है, लिंक इन द चैट, क्लिक ऑन दैट, ज्वाइन इनटू दैट क्लास इमीडिएटली। ठीक है, लिंक में जो चैट है उस पर क्लिक करो, उधर आ जाओ फटाफट, दैट विल ओपन इन द ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप में वो ओपन होगा, फटाफट उधर आ जाओ, उधर अपन उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ऑलराइट गाइस, आई विल सी यू ऑल देयर, जस्ट होल्ड।